Okay, so Quentin, how demoralizing was this loss? Because you were on top at the end of the first day. So where would you say that you lost this? Where would you say that you lost this game? Yeah, to be honest, I think we actually, at the end of the day, we were ahead, but it's not really where we wanted to be in the game. 220 on that wicket first innings isn't good enough, um, especially when you opt to bat first. You need a big first innings score. I know that we had them 40 for 4 or something like that. Obviously, that's a great start in our bowling innings, but that's the second innings. We did let ourselves down in the first innings. That was that was the point in the game where we let ourselves down the most. Faizan? Couldn't you still had a chance when Pakistan in first inning were 27-4? But do you think you could have done better with the ball as well? Your spinners could have done better? If there is, I'd like to know what we didn't do right. Because I think they bowled really well. If I remember, they weren't going at a big run rate for most of their time in the innings until the later part of their second innings. They caught up. That's what I remember. So I think our bowlers bowled really well and we kept the pressure on them. It's just forward just kept batting and just kept holding the pressure. That was it's just good batting, good solid test cricket in that situation of the game for them. It just needed. So that was so well played to him, and I thought our guys bowled really well. Stuart, followed by Ken. Hi, Quentin. In 3 of the last 4 test innings by South Africa, there's been these really big batting collapses. I was wondering if you were able to explain why they were happening and how you could go about resolving them. Sure. Trust me, if I knew, I would let you know. And if we knew how to fix them, we wouldn't be doing it in the first place. We have spoken about it. We are trying to find a way how to stop it. But unfortunately, it's these collapses are not happening on purpose. So it's something we are trying to figure out ourselves. So yeah. Kenny? Hotline Quinton, hi. You mentioned in the TV presentation the first innings and soft dismissals. Do you feel that maybe the guys are getting a bit stuck at the crease, can't rotate the strike, and then almost out of frustration, the big shot gets played? I think the way the pitch is playing, especially the first thing, it felt like such a good wicket that when you got a little bit bogged down, that you had to try and find a way to get scoring. But then we saw in there the way they batted, that wasn't the case. You had to stick in and dig deep. They didn't really go over the top a lot. When they did, it only did when they were in. So that was one learning we did take out. I mean, as you could see in our second innings batting, obviously in the third innings, the way Rassie and Aiden went about it, they scored runs, a similar sort of fashion. They took their time, kept the ball on the ground, soak up the pressure, and when the time came, they scored where they could. So that's what the learning we did take out of it. I think that's a big thing. Up next is Firdaus Talford and Aram. Hi, Kuni. Can I just ask about team selection? I know obviously Shama got injured just before play, but is there something else you would look at doing ahead of the next test in terms of maybe a seam bowling all-rounder or other combinations in the batting lineup? For those, to be honest, the game's just finished, so I haven't really thought about it. Not yet. Talford. Quentin, it's been a really tough few years for South Africa in the subcontinent. I know the conditions are obviously very different from what you guys face at home and everywhere else, actually. But is it all down to the conditions, or is there some kind of mental problem with South Africa? Playing in the subcontinent?
I think I've seen what India's just done, but also it's slow going for both sides of the teams. We lost wasn't our best. I think that's where you're getting at. So yeah, we want to get better. Obviously, it was mistakes from a batting thing, so that's a good step going forward. So yeah, look, I know our record as subcontinent's never it's not the greatest. We have won a couple of series. I've been part of a couple. It's just a matter of finding that way to get through the. Aram followed by Shoaib. I've already asked. Okay. Apologies. Shoaib. Yes. Hi, Captain. Pakistan beat you on the 4th day of the test. It means now Pakistan will not lose this series and you cannot win this series. Your players are surviving with injuries. Elgar have a hand injury and Tabriz is also not fit. So what do you think? Now South Africa is under more pressure for second test? Like I said, our game's just finished. We've had other things on our mind. We haven't really got to thinking about that stuff yet, but I had to just have a look at him. Looks like Shamo is getting fully fit again, and obviously Dean is busy finding out. So I just went, even if they're not fit, we've got suitable replacements anyway. And just to let everybody know, Dean does have a bruised left hand, but he is looking to be available for the second test. This is Mohammed. Daniel, and then hi. How would you evaluate the differences in performance between Noman Ali and Yasir Shah and George Linder and Keshav Maharaj? Do you think the spin, the difference in quality was perhaps the difference, made the difference in the outcome at this test? Sorry, Daniel, can you just repeat that, please? There was a bit of interruption from noise somewhere. Can you ask your question? Okay, sorry. Yeah, I'll go again. How do you evaluate the difference between the South African spinners and the Pakistani spinners? Do you think perhaps that's where the most telling difference was in this test that made the difference in the outcome as well? Well, obviously, I think generally, I think it wasn't really the bowlers, it's just the batsmen that was just the difference at the end of it. The way they played the spin to the way we did in our first innings and the later half of our second innings also. I think that was just the bigger things, not really our bowling. Like I said in my previous answers, the way they went about it, soaking up the pressure and the way it's hard to go about batting in these situations. So it was just more about that. I wouldn't say really too much about the bowling. No, Samuel, you've got the last question for Quinton. Quinny, I just want to ask that you played for the first time here in Pakistan. Not a good start, obviously. So I just want to ask that where your confidence stands right now as far as playing spin bowling is concerned. Like if you see Yasir Shah and Noman, the way they dominated your batting line. So anything you want to mention here about playing spin? I think to be honest, I think the first innings, we actually gave them our wickets, to be honest. So I think we got all right. Second innings, obviously, there was one or two good nuts, but, that's part of the game. You're going to get one or two good nuts. So I'm sure we're still fine. Just going to go back, just prepare like we did, just come back mentally stronger. Hi, Hayden. Well batted yesterday. I just wanted to know, did you do anything different? And also, was that an innings that you felt like it was quite satisfying, and did you get a lot of confidence after you struggled in your previous 8 innings in Asia? Thanks, Dennis. Firstly, I don't think I changed too much. I think we had a chance to learn from other Pakistanis played their first innings from a batting perspective, and just observing how they went about it was
something I've felt comfort with, the ability to back your defense, even in conditions that maybe really start to turn is quite important. So that's one of the things that I maybe not changed, but really bought into. And then from a satisfaction thing, I think there is a bit I can take from the knock for sure. There is that little bit of confidence for me personally, obviously from what I've been through in the sub. But ideally, in the ideal world, you would love to kick on. So close to the end of stumps last night. If I could have managed to find my way through that and maybe start over today, could have just helped settle the change room and allow for us to post a bigger target at the end of the day. So that's the part that obviously I'm to blame for. But like I said, there is also that element of confidence which I'll try to take from the innings. Hi, Aidan. Well batted. Your first half century on the subcontinent, and you spent a lot of time at the crease. Do you feel like this could be a bit of a breakthrough, that you now have even if it's just sort of mentally, that you kind of crossed a bridge when it comes to batting on the subcontinent? Look, Ken, by no means is it all of a sudden a finished product. But I'm sure it's albeit a small step, at least is a step in the right direction for myself. So I think that's how I'm trying to see it. Obviously, there's still lots of learning and growing to do for myself in conditions like these. So yeah, that's how I'm going to look at it. I think first innings, we can all admit it looked like a really good batting wicket. So to miss out there was frustrating, but it was at the end of the day I felt quite a good ball from Shaheen. So that's just one of those you just brush aside and try crack on. So a slightly different innings for me personally. It was quite challenging to accept. Really spending time and not worrying about scoring. But it was one of the things that had to be done on a wicket like that. So different for me, but nice to have experienced it as well. How would you compare the conditions and the challenges and difficulties here to what you faced in Sri Lanka and India? And are there any similarities that you could draw on some experiences from there, or is it very different? I wouldn't say it's very different for those. I do think, though, that however at the start of the test match, it actually is still very nice to bat. This wicket was, with regards to seam, very low. The longer you batted, the lower it got, which posed its own challenge, to be honest, putting spin aside. So I do believe maybe the first innings is very nice to bat. In the subcontinent, if I'm not mistaken, the games I've been a part of haven't won a toss and batted first. I think we've always fielded first. And I think in those cases, the opposition batted big. So we ultimately started batting when the ball started turning. But it felt like it was maybe would take a little bit longer to start turning here in a test match. But once it started turning, then certainly very similar to what we experienced in Sri Lanka and in India. Aram? What would you say was the turning point of South Africa's second innings? Was it the wicket of Rassie van der Dussen, because you had quite a long partnership with him, and you suddenly lost 3 wickets? So would you say that was the key wicket that changed the game in Pakistan's favor? Look, it's difficult to pinpoint a certain wicket that can be the difference in a whole 4 days of Test cricket. It obviously was a big moment because we were building a nice partnership together, and it spent a lot of time. And naturally, we understood that it would be tough for a new batter to come in at that time of day just to get through the stumps. I think it's important to understand it wasn't a case of us throwing our wickets away. They put enough balls in the right areas and eventually got their reward for it. So that's almost how it felt like. We tried. Unfortunately, that cluster of wickets fell at the end of day's play yesterday, which ultimately did put us. It's almost like taking a few steps forward, but a few more steps backwards, if that makes sense. Final questions are from Telford, Leighton, Kanyiso, and Khalid.
How's it, Aiden? I kind of want to say congratulations and bad luck all in the same breath. But I just wondered, is there anything you can take from growing up on South African pitches and move it over to what it takes to be successful batting wise in the subcontinent? Or is it just completely foreign, chalk and cheese? I think conditions wise, naturally, it's extremely different. But if I maybe think on the mental side of things, there's times maybe in South Africa or in seamer friendly conditions where you maybe have to be brave and try something different. Or ultimately something is new to you and you have to try it out. And I think maybe it's the same here with these conditions. So I think it's maybe that adaptability with having the plans in place if needs be to chop and change between them. But in terms of conditions itself, obviously very different. But maybe that's one thing that you can try to take from home that can maybe help you. Yeah. My name is Khalid. I'm from Union Bank. My question to you is, what was Leighton? Sorry. Hi, Aiden. Khalid? Congrats on the. Sorry, Leighton, can you just stop for a minute? Thanks. Aiden, congrats on the knock. Just in terms on what you said of kicking on after getting in. How much will that dominate the conversation amongst the batters ahead of the next test? Do you think it's something that you guys will really have to look at? Look, I think if you look back on most international tours that happen in the subcontinent, it is generally very difficult for a new batter to get in. It's something we have highlighted on previous tours and this tour, of course. So we understand that maybe your first 20-30 balls is vitally important. And it is something we have highlighted, yes, but it's obviously difficult for a reason, and we highlight it for a reason, and that's because it generally is, genuinely is tough to get in against a spinning ball like it was, for example, yesterday evening. So we have addressed it. We've addressed the fact that we want to stop losing wickets in clusters. So our thought process is certainly heading in the right direction. Now it just comes down to getting it right out in the middle when it matters. But we have highlighted it and made a note of it, and hopefully we can turn it around in the next game. Hi, Aiden. My question to you is that the way you and Rishi were batting last night, what was the conversation, what was the talk between the two of you during that long partnership? And would you say that the pitch behaved dramatically over the both of the 4-day matches, or 3.5 days of play? Can you please repeat that? Sorry, I don't know. Sorry, sorry. Now, can you hear me? Yes. I just want to know what was the conversation between the two of you last night when the partnership was going very well for South Africa, and would you say that the pitch over the period of time from day one to Friday today, it changed very much, or it's all the same? Look, the conversation between myself and Rassie was, we both had game plans, and we kept really telling each other to stay committed to that game plan, although we were scoring very slowly. We felt like as soon as we left our game plan, they would have the chance to strike. And then, like I previously mentioned, it would be difficult for the next man in to get in as well. So that was sort of the conversation Rassie and I had. In terms of the pitch, I do think it changed over the 3.5 days that it's been now. However, I still think it started spinning more and more off the straight as the game went on. Naturally, when their two spinners bowled into the rough to the left-hander, it would spin. In our first innings, it wasn't spinning off the straight, and I felt like the longer we batted in our second innings, it was spinning more off the straight, which shows that conditions did change slightly. We're out of time, guys, so we'll go with the final question. Kanyisa? Aiden, hard luck about the game. What kind of conversations are you guys having with regards to arresting South Africa's very poor form on the subcontinent? With I think it's eight consecutive test losses now. Yeah, it's a tough one. I mean, we're having conversations obviously to try get
get wins under the belt. You also have to understand that we're touring, specifically this tour, with a lot of new faces and a lot less experience than maybe we did in the past. So that also needs to be taken into consideration. But it's quite important that on tours like these, I know this isn't a long test series, but that you don't make the same mistakes and the same mistakes that you've made in previous tours. So I'll be honest, from a personal perspective, I think the thing that helped me was just spending time out in the middle and eventually feeling like you can find a way to score. So I think that'll be the focus going forward. I must take my hat off to our bowling unit. I thought they tried their hardest and really ran in regardless of the situation of the game, which was pleasing to see. And they found a way to strike pretty regularly throughout their bowling efforts, which was good. But yeah, I think it comes down to the bat. It's maybe being a good start and that allowing the change room just to relax a bit and maybe that can set us off in a good direction. हमें ज्वाइन करना प्लीज थैंक यू सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। टीम गेम में जी टीम जीती है और बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम होम में खेल रहे हैं। सो अल्लाह का शुक्र है, सबने रिस्पॉन्स किया और टीम बड़ा ज़बरदस्त खेली चारों दिन और जो हम ये टेस्ट मैच जीता अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। प्लीज फवाद के लिए क्वेश्चंस के लिए मुझे चैट में प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा। जी फैजान आप क्वेश्चन करें। फवाद, दोनों टीमों में आपको फर्क क्या लगा? यहाँ पर आपकी कारकर्दगी में तो बात होती रहती है, लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो दोनों टीमों ने फर्क क्या था? फर्क करना तो आई थिंक वैसे होगा कि लेकिन ये था कि दोनों टीमों का फर्क ये था कि हमें होम कंडीशन थोड़ी सी जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको पता है। और जिस तरह से फर्स्ट इनिंग जैसे बैटिंग में हुआ, फिर उसके बाद हमने जो है रिकवर किया जबरदस्त। हमने एक टारगेट, जब आप 150 रन तकरीबन आप कर लो, टीम को ऊपर चढ़ा दो और आपकी होम कंडीशन और फिर आपके पास स्पिनर्स ऐसे हैं जबरदस्त। यासिर शाह, नुमान अली का जिस तरह से डेब्यू हुआ, हम सब देखते हुए आए डोमेस्टिक में, उसने इतना परफॉर्म किया एज अ बॉलर। तो आई थिंक बॉलिंग का बहुत फर्क था, हमारी स्पिन बॉलिंग का तो बहुत ज्यादा ही फर्क था, जिन्होंने एक तरफ जो है ये मैच कर दिया हमारे। जी महमूद आप क्वेश्चन करिएगा प्लीज। अच्छा फवाद, माशाल्लाह आपकी जो परफॉर्मेंस है, फैन फॉलोइंग आपकी सोशल मीडिया पे ऐसी चल रही थी कि 88 रन पे भी लोगों की ख्वाहिश थी कि विनिंग शॉट जो फवाद आलम मारे। क्या कहेंगे इस पे? अल्लाह का लाख शुक्र है और उनका मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, अभी की बात नहीं है, सपोर्ट करते हुए आ रहे, उनकी दुआएं हैं, उनका प्यार है। किसकी दुआ लगती है किसने और आई थिंक प्यार की वजह से सपोर्ट की वजह से आज बैठा हूँ यहाँ पर। जी प्लीज इमरान आप क्वेश्चन करिएगा। फवाद, मैं पहले भी आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था, इमरान बात कर रहा हूँ। आपने सेंचुरी के बाद ये 10 का इशारा किया था, जरा वो एक्सप्लेन कीजिएगा, वो 10 का इशारा था या कुछ और था? और अगर वो 10 का ही इशारा था तो वो किसके लिए था, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा उसको। कोई इशारा नहीं था, किसी ने कुछ भी इशारा नहीं था। मेरी आदत है, मैं बस यूं रिलेशन करता हूं। और आज की बात थी कि वो ग्लव्स उतरे हुए थे, मैंने सजदा किया हुआ था, तो ग्लव अदरवाइज मेरे हाथ में ग्लव्स होते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता। अगर आपने पहले भी जुबिलेशन देखी हो, मैं सिर्फ बस यूं करता हूँ, बस थैंक यू का मतलब है कि एक तरह से, क्योंकि आपके टीममेट्स आपको बैक कर रहे होते जब आपने सेंचुरी मारी, और किसी का कोई इशारा नहीं था सर। ये सिर्फ बस ये था कि थैंक यू सो मच, ऐसे। जी माजिद भाई। जी फवाद, बहुत बहुत मुबारक हो, आप होम ग्राउंड पर आज पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाने में कामयाब हुए। तो कभी ड्रीम था कि नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान को मैच जितवाऊं, होम ग्राउंड है आपका और मुझे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले? फिर जो आपका जो पिछले 10 साढ़े 10 साल का टाइम था जिसमें आप कह रहे थे कि मुझे फैमिली ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, फैमिली ने खड़ा रहने के लिए कहा, तो आज फैमिली के क्या तासुरात होंगे? थैंक यू सो मच। और जहाँ तक आपने बात की फैमिली की,
बिल्कुल जी, लंबा टाइम होता है, इतना छोटा टाइम नहीं होता, उसमें आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है और जितना आपको सपोर्ट मिलता है उतना ही आपको फ़ायदा होता है। आप फिर अपने लिए तो एक खड़े रहते हो, फिर आप अपनी फैमिली के लिए भी खड़े रहते हो क्योंकि उनकी होप्स होती हैं आपके ऊपर कि नहीं यार आप करोगे और आप करते रहो, लगे रहो। और ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब, वो मुझे, मैंने आपको पहले भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे हमेशा से फाइटर बोलते हैं। तो मेरे ख़्याल से उनका बहुत ज़्यादा मुझ पे सपोर्ट है, वो क्रिकेटर भी हैं, खुद क्रिकेटर हैं, तो वो इन चीज़ों को समझते भी हैं। तो उन्होंने हमेशा मुझे पॉज़िटिव बातें ही बताई और हमेशा इस दौरान भी बस ये कहा कि बस पॉज़िटिव रहो और जब टाइम आता है अल्लाह ताला देता ज़रूर है और ये है कि अपने टाइम का वेट करो, जब अपॉर्च्युनिटी आए तो उसको किस तरह से ग्रैब करना है, उसके लिए आप तैयार हो। तो मेरे ख़्याल से किसी भी प्लेयर के पीछे उसकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आपके जो उतार-चढ़ाव आते हैं, अगर आपकी फैमिली अच्छी हो, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही हो आपको, तो आप हर मुश्किल से निकल जाते हो। और जहाँ तक आपने पाकिस्तान को जितवाने का कहा, मैन ऑफ द मैच का कहा, ये एक तरह से ड्रीम ही है मेरे ख़्याल से, और क्योंकि पहला मैच था मेरा पाकिस्तान में और वो भी फिर कराची में, और अल्लाह ने उधर सेंचुरी करवाई और मैन ऑफ द मैच भी करवाया और उस सेंचुरी से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह भी दिलवाई। तो आई थिंक इस चीज़ के लिए लफ्ज़ बहुत कम होंगे। इसका बस मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आगे भी ऐसी परफ़ॉर्मेंस करवाता रहे। जी थैंक यू अच्छा फवाद के फवाद, लिए। एक छोटी सी बाबर, बात मिस कर गया था कि ये जो इनिंग्स है अपने फादर को डेडिकेट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, ये हमेशा मेरी पहली भी थी, मैंने जो सेंचुरी मारी न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, मैंने पहले भी बताया था कि लाइक मेरे फादर और मेरी मदर की एनिवर्सरी थी 25th ऑफ दिसंबर को। तो मेरे घर पे बात हो रही थी अब्बू-अम्मी से, उस टाइम जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे घर में, तो उन्होंने जब छोटी-सी एक गैदरिंग रखवाई थी मैंने सरप्राइज़ उनके लिए ना, तो उनको पता नहीं था। मैंने बहन को कह के सरप्राइज़ उनकी गैदरिंग करवाई थी। तो उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है तुमने मुझे, अब्बू ने कहा था। कहते हैं, मैंने कहा अब्बू गिफ्ट तो, मैं ऐसे ही बोल रहा था, अब्बू यार गिफ्ट तो नहीं है। तो कहते हैं मुझे गिफ्ट मिल जाएगा जब तू जो है ये जो टेस्ट मैच खेल रहे हो इसमें आप परफॉर्म करोगे और सेंचुरी बनाओगे। तो मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि वो सेंचुरी में मेरे फादर और मेरी मदर को डेडिकेट करता हूँ और हमेशा से जितनी भी आगे परफॉर्म करूँगा वो सब मेरी फैमिली के लिए डेडिकेट। जी थैंक यू फवाद के लिए। बाबर हमें इन मिनट ज्वाइन करें प्लीज। थैंक यू जी। खालिद खान, वहीद खान एंड माजिद भट्टी प्लीज। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपना पहला मैच बतौर कप्तान जीते हैं। ये बताइए कल जब ये दोनों की पार्टी चल रही थी और उसपे नजर भी आ रहा, थोड़े आपको फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे फील्ड पे, तो क्या मतलब क्या चीज आपको मतलब क्या मतलब मोटिवेशन थी आप लोगों को, आपने कहा नहीं कमबैक कर सकते। और ये बताओ कि विकेट का जो बिहेवियर है 3.5 दिन में, इसको कैसा देखा आपने? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बात की, पहले इनिंग में हमारे जो आउट हुए थे, 4 आउट हो गए थे 36 पर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो अज़हर अली और फवाद आलम खेले, वो आउटस्टैंडिंग खेले, उससे टीम को बहुत कॉन्फिडेंस आया। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि करैक्टर शो करवाया सीनियर्स प्लेयर्स ने, फवाद आलम ने, अज़हर अली ने। फवाद आलम ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और इतना लंबा उन्होंने लेके गए और टीम को एक कॉन्फिडेंस दिया, एक बिल्ड हुई कि यार नहीं हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। तो वो चीज़ हमें काफ़ी हेल्प हुई। और उसके बाद फ़हीम अशरफ का मैं स्पेशली बोलूँगा, उसने जिस तरह अपने आप को चेंज किया, उसने अपनी बैटिंग चेंज की। वो उसने न्यूज़ीलैंड में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और बॉलिंग में भी अच्छी की और यहाँ पे भी आपके सामने बैटिंग में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना कॉम्पैक्ट वो खेला था। तो इससे ही देखें, जब प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रूम होती है, आपको समझ आती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको क्या कॉम्बिनेशन से जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और कंडीशंस देखें आपके सामने ही है, कराची में मोस्टली ऐसी ही होती हैं, स्लो। और यहाँ पे ये था कि थोड़ा बाउंस था, कुछ ऊपर-नीचे बॉल हो रहा था। ये यहाँ पे नॉर्मली होता है और स्पिनर को भी हेल्प मिल रही थी। जी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज क्वेश्चंस रिपीट ना करेगा और एक एक क्वेश्चन करेगा ताकि सबकी टर्न हो जाए। जी प्लीज। बाबर, मेरा सवाल ये था, पहले तो मतलब कांग्रेट्स, ग्रेट मैन। मेरा सवाल ये था बाबर के आपको कप्तान बनाया गया, ऑब्वियसली बात है ये सोच करके यू विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू जस्ट मतलब अभी 25-26 से आप साउथ अफ्रीका के अभी जो कप्तान है, तो उनसे यही बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड जो है सब कॉन्टिनेंट में बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि जी आजकल जो टीमें हैं अगर आप देखें तो ओवरसीज़ बहुत कम जीतती है। एज पाकिस्तान कैप्टन बाबर, क्या आपका ये टारगेट है
कि इवेंचुअली पाकिस्तान टीम को आपने इस काबिल करना है कि हम ओवरसीज भी जाके जीतना शुरू करें, नॉट ओनली एट होम? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा बिल्कुल ऐसा माइंडसेट यही है कि आप होम कंडीशन आपको सूट करती हैं तो आपको एज मिल जाता है, लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ जाके जीतना, वहाँ जाके परफॉर्म करना, उसका कॉन्फिडेंस और उससे टीम का भी कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट वे में चल जाता है। देखें, आप अगर एज अ बैट्समैन मैं आपसे बात करूँ तो अगर मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस करूँ या कोई भी बैट्समैन परफॉर्म करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके मैचेस के बाद, सीरीज के बाद डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही टीम का भी ऐसा ही है कि जब वो बाहर जाके मैचेस जीतेंगी, टफ क्रिकेट खेलेंगे, तो वो उससे टीम का भी काफी कॉन्फिडेंस हाई होगा और पूरी एक टीम बनेगी आपके सामने। तो कोशिश यही है, बिल्कुल हमें यहाँ पे प्लेयर्स को बैक करना बहुत जरूरी है और ये नहीं है कि एक आधी परफॉर्मेंस से आप उसको निकाल दें या उसको कह दें कि नहीं यार आप ऐसे प्लेयर नहीं हो। देखिए वो परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं आपके सामने। जो नुमान अली खेला है, देखिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी आपके सामने। मुझे नहीं लगा वो कोई ऐसा पहला मैच है और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा है। देखिए इंटरनेशनल में प्रेशर आता ही आता है, तो वो चीज़ आपको सीखनी, जितनी आप जल्दी सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। जी नेक्स्ट माजिद भाई, देन शाहिद हाशमी प्लीज। अच्छा बाबर, होम ग्राउंड पर हमने माशाल्लाह आज 7 विकेट से टेस्ट मैच जीत लिया, लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले आप जवाब दे रहे थे कि ये फिर टीम जब अवे सीरीज जाती है, जिस तरह अभी हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नजर आती है। तो इस टीम में अब आपका तो एज ए टेस्ट कैप्टन पहला टेस्ट मैच था, ऐसी की क्या चीज बताना चाह रहे हैं आप और मिसबा इन खिलाड़ियों को कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट फॉर्मेट में भी दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ इसी तरह खेले जिस तरह होम ग्राउंड पर खेल रही है? बिल्कुल, प्लेयर्स को यही बताया जाता है कि कॉन्फिडेंस रखो अपने पे, जो आप गेम करते हैं वो उसी पे रिलाई करो और ये नहीं कि आप प्रेशर में आ जाएं, एक इनिंग्स के बाद आप प्रेशर में आ जाएंगे पता नहीं क्या होगा। ये देखें लर्निंग चीज़ें हैं, आपने डे बाय डे आपने कुछ नया सीखना है, नया गलती करते हैं आप। एक दिन ये नहीं कर सकते कि आप एवरी डे आप सही रहें, ऐसा हो नहीं सकता। न्यू डे एवरी डे आप कोई ना कोई गलती करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से जितना जल्दी सीखेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। और कोच भी और मेरा भी जितना भी इंटरेक्शन होता है, जितना भी प्लेयर्स के साथ जितना भी होता है, ऑलमोस्ट हर प्लेयर को यही कहा जाता है कि यार जिस तरह आप शुरू से लेके अब तक क्रिकेट खेलते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से खेल के हैं, अपने पे बिलीव रखो। तो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं, अपने आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना बिलीव, वो बहुत जरूरी है आपको। जी शाहिद हाशमी, रशीद शकूर एंड दानियाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, सीरीज से पहले जब न्यूजीलैंड से टीम आई तो बड़ी मीडिया पर बड़ी चीजें सर्कुलेट करती रही कि मिसबाउल हक और वकार यूनुस अंडर प्रेशर हैं, तो टीम मैनेजमेंट के लिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा ये जीत, और कैसा रवैया आपने पाया? कुछ परेशान नजर आए कोच और बॉलिंग कोच? मेरे ख्याल से तो नहीं, ऐसे कोई रूमर्स थे, मुझे नहीं लगा। जब हमने दोबारा टीम को ज्वाइन किया, जब एक जगह हम कराची में इकट्ठे हुए, तो बिल्कुल वो जैसे पहले माहौल था अभी वैसे ही है और वैसे ही सारे जल हैं। और मुझे नहीं लगा कोई परेशानी या कोई ऐसी कोई चीज़ थी। आपके सामने रिजल्ट, आपके सामने देखें, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभार आपको वो थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे हो जाती है। एज अ प्लेयर भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। कभी आपकी अच्छी चीज़ जाती है, कभी बुरी जाती है। तो जितना मेरे ख्याल से उससे सीखेंगे, जितना जल्दी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, वो मेरे के लिए पूरी टीम के लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, नवंबर 2018 में हम न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच जीते, उसके बाद फिर बड़ी टीमों से हम नहीं जीत पाए थे, जिसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब ये। तो ये जो जीत है, एक मतलब बड़ी टीम है, रैंकिंग में भी ऊपर है पाकिस्तान से, तो ये जीत कितनी यानी अहमियत की हामिल है और इससे क्या आप लोगों को एक मोटिवेशन या इससे एक तहरीक मिलेगी आगे के लिए? कितना इंपॉर्टेंट थी ये जीत? बहुत बहुत ज़रूरी थी ये जीत हमारे लिए। एज अ टीम ग्रुप, पूरा ग्रुप को बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम पिछली सीरीज न्यूजीलैंड वाली इतनी अच्छी नहीं खेली और ये हमें इस होम कंडीशन में था और इतनी बड़ी टीम में इतनी देर बाद आई थी। तो बिल्कुल हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत थी एक टीम को जल्द होने में।
और आपके सामने देखें पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया, हर प्लेयर ने, इवन फास्ट बॉलर से लेके स्पिनर, बैट्समैन, फील्डर्स, देखो सब, जब मैच आप जीते हैं तो पूरी टीम का, हर प्लेयर का, 11 प्लेयर्स का कंट्रीब्यूट होता है। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देता हूँ मैं टीम को पूरी। जी दानियाल एंड देन शुएब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, साल पहले जब पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट जीते थे तो अजहर अली तब कैप्टन थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उस तरह जरूरी नहीं है जिस तरह बाकी सब कॉन्टिनेंट साइड्स हैं जो कि काफी फोकस अपना स्पिन पे रखती हैं जब होम ग्राउंड पे खेल रही होती हैं। तो इस मैच में तो पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स खिलाए, पिच काफी टर्न ले भी रही थी। आप आगे कैप्टन होंगे होपफुली कुछ देर के लिए, तो आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान के होम में क्रिकेट होगी उसमें आप किस किस्म की पिचेस देखते हैं, और आपको लगता है कि उसी तरह स्पिन का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल होगा, या फिर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान शायद उस तरह फास्ट बॉलर्स को शायद होम पे चांस मिले जिस तरह शायद श्रीलंका में या इंडिया में टाइम्स नहीं मिलता? देखो बैलेंस होनी चाहिए, स्पोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए, बैट्समैन को भी सपोर्ट करे और बॉलर्स को भी सपोर्ट करे। और जैसे हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से वो विकेट्स बनाते हैं, अपने जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उस पर वो विकेट बनाते हैं। तो हमें होम एडवांटेज यही है कि हमें जो सूट करता है वो हम उसी तरीके से उसी को यूटिलाइज करते हैं। जी शुएब एंड देन जुबैर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम कप्तान, मुबारक हो, पहली बार कप्तानी की और पाकिस्तान को जितवा भी दिया। कुछ खिलाड़ियों के साथ टाइटल जो है वो लग जाता है या बस उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, तो आपसे 100 से कम जो है वो लोग सोचते नहीं हैं। आप 99 भी करो तो लोग कहेंगे यार बाबर ने क्या कर दिया। तो 100 को भी मिस किया, 200 भी मिस करते हैं। तो और जो अगला पिंडी का टेस्ट है उसमें क्या सेम 11 रखेंगे? ऑल्दो कि आपका जवाब होगा कि ये स्ट्रेटेजी अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बता देंगे तो खिलाड़ियों को जो है वो थॉट हो जाएगी। सवाल कर ये देखें मैच है भाई, देखें यहाँ की कंडीशन और उसकी पिंडी की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से वहाँ जाके ही पता लगेगा कि हम किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे। और देखें बिल्कुल आपका पहले सवाल का जवाब दे दूँ, लोग काफ़ी उस चीज़ पे रखते हैं कि हर मैच में परफॉर्मेंस करें, और कोशिश भी यही होती है कि हर मैच में परफॉर्मेंस दी जाए, लोगों को परफॉर्मेंस से खुश किया जाए। लेकिन देखें हर दिन एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं, मुख्तलिफ वो चीज़ें डिफरेंट आती हैं, तो कभी कभार आप करते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि अपना 100% दिया जाए। थैंक यू। जी बाबर, क्वेश्चन आपसे ये है कि हम फवाद आलम की एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 साल के बाद उन्होंने कमबैक किया, फोकस रहे, वो नए प्लेयर जो कि दरवाजा खटखटा रहे होते हैं टेस्ट क्रिकेट का, उनको इंतजार करना पड़ता है, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज देना चाहेंगे या कोई कॉन्फिडेंस हो उनको क्या करना है, फोकस करते रहें, कंटिन्यू क्या? अच्छा, बिल्कुल जी। देखें मेरे ख्याल से उनको यही मैसेज है मेरा कि परफॉर्मेंस दें, जो से भी फॉर्मेट खेलें, वनडे खेलें, T20 खेलें या 4 डे खेलें, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो फिर आप उस चीज़ के लिए आप सिलेक्टर्स को मजबूर करते हैं कि वो टीम में डालें आपको। और ऐसे ही देखें फवाद आलम ने भी देखें कितना वेट किया और कितनी देर बाद उनका टीम में कमबैक हुआ, और उन्होंने शो करवाया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया कि यार मैं इतना वेट किया था, किसी वजह से किया था, उसके पीछे मेरे ख्याल से 10,000 रन उन्होंने किए हैं यार। बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है, और खुशी होती है कि वो उन्होंने मैच जिताया, उस इनिंग से हम उसमें कमबैक आए और उससे हम मैच जीते और वो आपके सामने मैन ऑफ द मैच हुए। जी क्विकली प्लीज असगर एंड देन फैजान प्लीज क्विकली करिएगा, हमने निकलना प्लीज लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर जो हमारी जो साउथ अफ्रीका की विकेटें गिरी उसमें 14 स्पिनर ने लिए हमारी, 2 शायद रनआउट हुए थे और 4 फास्ट बॉलर ने लिए। जो हमारी 13 विकेटें गिरी उसमें से 4 स्पिनर ने लिए साउथ अफ्रीका के और बाकी फास्ट बॉलर के हिस्से में गई। तो फास्ट बॉलर का तो शोभा है हमारा, बेशक विकेट स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी। क्या आप हसन के दोबारा करूं?
आप हसन क्या क्या कह रहे थे? आप हसन का प्लीज करिएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत शॉर्ट है, हमने निकलना। प्लीज जल्दी। मैं ये कह हसन। रहा था कि जो जिस तरह से विकेटें गिरी हैं उसमें हमारे स्पिनर छाए रहे, फास्ट बॉलर सिर्फ 4 विकेट ले सके, जबकि साउथ अफ्रीका ने जो है वो 13 में से जो है 9 विकेटें ली हैं। हसन भाई ये उनके सब फास्ट सुन लिया बॉलर था, ने। आप हसन वाला प्लीज करिएगा क्योंकि आप रिपीट कर मैं रहे ये हैं। कहता है हसन की कारकर्दगी और शाहीन की कारकर्दगी, वो क्या इस मुतमईन है या कोई चेंज हम देख रहे हैं पिंडी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी मुतमिन हूं दोनों से, जैसे उन्होंने एफर्ट की, और स्पेशली मैं हसन इतनी देर बाद तो कमबैक हुआ और उसने इंटेंट शो करवाया। तो देखें उसको इस कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो दुबई में खेलता रहा है और उसको इस कंडीशन की पता है कि उसने कैसे बॉलिंग करनी है। शहीन ने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। देखें बिल्कुल स्पिनर को उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन फास्ट बॉलरों का भी इधर की रोल था कि उन्होंने एक तरफ बॉलिंग की और स्ट्रिक किया, और उसकी वजह से स्पिनर्स को विकेटें मिली। थैंक यू नजब। बाबर, आपने बड़ा एम्फेसाइज करते रहे कि हमें अवे जाकर भी खेलना है और वहां जाकर जीतना भी है, और उसके लिए एतमाद भी जरूरी है। लेकिन वो एतमाद हासिल करने के लिए क्या रोड मैप आप सजेस्ट करेंगे कि उस प्लेयर्स में वो एतमाद भी आए और हम उस लेवल पर जाए जिस तरह अब हम देखते हैं कि इंडिया जैसी टीम बाहर जाकर अच्छा करती है अवे की कंडीशन में भी, तो हम भी उस लेवल को किस तरह अचीव कर सकते हैं? वो एतमाद कैसे आए हमारे प्लेयर्स में? देखें कंसिस्टेंट बहुत होना जरूरी है, और दूसरा ये कि आपको प्लेयर को बैक करना बहुत जरूरी है। बात फिर वही करूंगा कि 1-2 सीरीज के बाद ये नहीं कि आप उसको बाहर कर दें, और आपको सपोर्ट चाहिए होती है मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से। तो वो जितना हम देंगे उतना देखें टीम बिल्ड होगी और प्लेयरों की परफॉर्मेंस भी हमें जाके आपको आएगी। जी लास्ट क्वेश्चन इमरान प्लीज क्विकली करिएगा। अच्छा बाबर, आपने अभी जिक्र किया शाहीन का कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन 2 विकेटें सिर्फ उन्होंने लिए हैं। हम देख रहे हैं कि वो तमाम फॉर्मेट खेल रहे हैं। बहुत ज्यादा आप नहीं समझते कि हम उन पर ओवर रिलाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। देखें आपका बेस्ट बॉलर होता है तो आप कोशिश यही करते हैं कि उसको हर फॉर्मेट में यूटिलाइज किया जाए उसको, और मुझे नहीं लगता कि वो हम उसको ओवर ट्राई कर रहे हैं या ओवर यूज कर रहे हैं। वो उसको ना वो आपको लगा कि उसकी बॉलिंग पेस कम आई है या उसने एफर्ट कम की है, मुझे नहीं लगता। मैं जितना भी खेला हूँ इसके साथ, और इसने जब भी इसको बॉल दी है या इसको फील्ड में जो भी फील्ड पोजीशन पे रखा है उसमें इसने 100% दिया और एफर्ट ये पूरी करता है। इसलिए मुझे हम इसको हर फॉर्मेट में यूटिलाइज करते हैं, और ये आपके सामने ही। जी थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन